welcome to Elections on My Plate, where we start a journey into a new season from here in Raipur in Chhattisgarh. Now, Chhattisgarh has seen one of the more remarkable political turnarounds of recent times. For 15 years, between 2003 and 2018, the BJP dominated the politics of Chhattisgarh, winning 3 consecutive elections. But in 2018, suddenly, the Congress made a comeback, winning a 3/4 majority, riding on the back of anger, fatigue against the ruling government and farm-friendly politics. 5 years later, the big question, can the Congress capitalize on the momentum of 2018, or will 2023 see the revival of the BJP? Join me on Elections on My Plate. Okay, like in so many other parts of the country, in Raipur too, you have to start your mornings with a good hot cup of chai. But chai with samosa, poha and chai pe charcha. Come with me. Everybody well? ये क्या खा रहे हो आप लोग सुबह सुबह? आलू भजिया। आलू भजिया सुबह सुबह? What will happen to your exercise? आप एक्सरसाइज करते हो और आलू भजिया खाते हो? बराबर करना पड़ता है ना। बैलेंस क्या? वैसे आपको एक गुड न्यूज देना था। हाँ। लादेन अभी भी जिंदा है। कौन जिंदा है? लादेन। अच्छा, ये आपका ओसामा बिन लादेन। उसका वैसे दिखता है ये आपको ओसामा बिन लादेन कह रहे हैं, ये क्या है? ये आपके दोस्त है या दुश्मन है? सबसे अच्छा हम लोग से काम वही रखे। अच्छा, ये बताओ चुनाव में क्या होने वाला है? ये तो सब छोड़ो, चुनाव में क्या होगा? छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है? काका बीजेपी आ रही है। भाजपा, ये काका यानी भूपेश बाघेल ऑफ द कांग्रेस। कोई भी आए खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। कोई भी आए। एक तकिया कलाम चला है, सीटें कांग्रेस की आएंगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा, यहाँ चला है, कुछ दिनों से चल रहा है। तकिया कलाम। हॉर्स ट्रेडिंग का डर तो है। हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग का डर तो है। यानी छत्तीसगढ़ में घोड़ों की कमी नहीं है। घोड़े बिकने को तैयार हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेसी घोड़े जल्दी बिक जाते हैं, आप कह रहे हैं काका यानी बाघेल जी आएंगे। बिकने का कारण नहीं। हाँ। तो या तो पैसा साथ में फाइल भी है, तो डर के मारे जाएंगे कहाँ? किसकी फाइल? सबकी फाइल है। ईडी और आईटी जो कर क्या रही है? ये मीडिया स्पेशल है आपके लिए। अच्छा, ये बताओ, ये छोड़ो, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंडिया। श्योर? 100%। Okay, time for me to head for some tea and good old poha. Come with me and some more chai pe charcha. This time a little bit more serious. I've got 3 journalist friends and activists who joined me here to get an insight into the complex politics of Chhattisgarh. Neeraj Mishra, you were with India Today magazine for years, based now in Raipur. Sumi Rajapan is our correspondent here in Raipur, does a lot of stellar work. And Alok Shukla is a tribal activist in a state where, remember, more than 30% are tribals, 29 out of the 90 seats. So, thank you very much for joining me. Your sense of this election in Chhattisgarh, what is the big factor that one must look out for? We should look out for 2 things. Where is the OBC vote getting divided and how the tribal vote is swinging. Those are the 2 main concerns. Where is the OBC vote? OBC is about 45% of the population. Roughly. And tribals would be about 32, 33. So you're saying these are the 2 key vote banks. The other key vote bank, many would say, are the farmers. Yes. Because Bhupesh Baghel came to power with a lot of farm-friendly politics. Do you believe that will be the critical factor? How the farmers vote, or who do they believe has done best for them?
So the farmer community stays very pleased after 2018 and after the farm loan waiver announcement back in 2018 that was made by the Congress, and this time around also they are now resting on it largely. And with 70% of the farmer population, more than 37 lakh farmers in Chhattisgarh, it is certainly going to be a determining electoral issue this time around. You know, because Raman Singh, the previous chief minister, used to be called Chawal Baba. This is paddy country. Correct. And now you've got someone calling himself Kisan Putra, which is Bhupesh Baghel. So you're saying the farmer vote will decide this election? Certainly a large part of it, What about the tribal vote? जो tribal vote जो है 32% है. कई वादे किए गए. लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस ने ट्राइबल एरियाज को स्वीप किया था. क्या इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है वहां? निश्चित तौर पे, क्योंकि आदिवासी समाज को ये लग रहा है कि उनके जो मुद्दे थे, जो 3 बड़े सवाल थे, जो रिसोर्सेस की लूट, खनिज संसाधनों की लूट, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और बस्तर के अंदर माओवादी हिंसा के नाम पर राजकीय दमन, फर्जी गिरफ्तारियां, दमन, इन तीनों मुद्दों पे राज्य सरकार बहुत बेहतर तरीके से जो वादे हैं वो नहीं कर पाई. आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का सवाल है. 5वीं अनुसूची पैसा नियम जो बनाया गया वो कानून की मूल आत्मा के अनुरूप नहीं है. तो आप कह रहे हैं ट्राइबल के मुद्दे जो है अभी भी ज्वलंत है, वो पूरे तरीके से हैं और इसीलिए आदिवासी समाज के अंदर एक नाराजगी पूरे छत्तीसगढ़ में है. I don't know if you are betting people, but Raipur has a good betting culture. Who's going to win the election? What's your sense? 90 seats on offer. What's your sense? Who has the edge? So Congress has the edge, but the Congress has to try hard to win back. Yes. Your sense? My sense is that Congress has an edge, but not because it has performed very well, but because the BJP has not done very well in the past 5 years. You know, I was told on the other side of the road, horse trading हो सकती है. चुनाव के बाद MLA यहाँ वहाँ घूम सकते हैं मध्य प्रदेश स्टाइल. Possible? Possible, yeah. Can't be ruled out? Yes, definitely can't be ruled out. Small assembly कुछ भी हो सकता है. Your sense कौन जीतेगा? मार्जिन विधायक बनने में भी होगा और सरकार बनाने में बहुत मिनिमम मार्जिन होगा. आज की स्थिति में ये नहीं कह सकते कि कौन सरकार बना रही, लेकिन निश्चित तौर पे अच्छी स्थिति थोड़ा बीजेपी से कांग्रेस की थोड़ी है. क्यों? क्योंकि 5 साल बीजेपी विपक्ष के रूप में गायब रही है. Time for some पोहा. मेरा पोहा तैयार है कि नहीं? हाँ, आलू पकौड़े, तेल, थोड़ा प्याज, थोड़ी चटनी भी डाल दो और थोड़ी दही. You see, the poha of this part is more spicy than we have in Maharashtra. I'm going to have my poha, and then we are going to head to meet the man who claims he's redefining Chhattisgarhi identity, Bhupesh Baghel or Kaka. Spicy. Our first political pit stop here in Raipur is at the residence of Chief Minister Bhupesh Baghel. Now, the rise of Mr. Baghel is one of the stories of our times, because 10 years ago, almost the entire Congress leadership was wiped out in a terrible Naxal attack here in Chhattisgarh. Since then, Mr. Baghel has played a key role in rebuilding the Congress party. In 2018, there was a battle for chief ministership between him and T.S. Singhdeo, which Baghel won. Since then, he, an OBC and a farmer leader, has become the unquestioned boss of the Congress. Kaka, as they call him, is faced with a challenge this time. In 2018, he could ride on anti-incumbency. This time, he's the incumbent. Can Kaka Baghel rise up to the challenge? Let's go and have breakfast with the Chief Minister. Sir, namaskar. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आइए आइए. छत्तीसगढ़ की हरियाली. जी. हाँ? वैसे 44% जंगल है सर यहाँ. हाँ? नेचुरल हरियाली यहाँ 44% जंगल है. 44% जंगल. मैंने एक पुरानी पिक्चर देखी थी, जंगल में मंगल. पर वो तो बहुत पहले. हाँ, शम्मी कपूर का जंगली भी आया था. मैंने आपसे कहा था छत्तीसगढ़ी ब्रेकफास्ट. जी. तो आप छत्तीसगढ़ी ब्रेकफास्ट खिलाएंगे? बिल्कुल, आप आइए. चलिए. ओहो, आज तक लगाया है. वेरी गुड.
वाह, रेडी सर। ये तो आपने परफेक्ट ब्रेकफास्ट बना दिया, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये लीजिए, ये चावल का चीला है। चावल का चीला, वाह। ये चटनी के साथ ये खाते चटनी, हैं? टमाटर की चटनी के साथ खाइए। टमाटर की चटनी। ये हमारे साउथ इंडिया के उत्तपम की तरह है थोड़ा, है ना। कोयला घोटाला, आपके करीबी अधिकारी उसमें पकड़े जाते हैं, ईडी की कार्रवाई होती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आईएएस ऑफिसर से लेके सौम्या चौरसिया जो आपकी डिप्टी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, उनका अरेस्ट होता है। उनको बेल नहीं मिली अभी तक। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई आपके नजदीक आ रही है। कोयला घोटाला कहीं ना कहीं बाघेल सरकार को घेर लेगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। कोयला खदान किसकी है? भारत सरकार की। वो उसको ऑपरेट कौन कर रहे हैं? भारत सरकार के अधिकारी, एसएससीएल के लोग। उसकी सुरक्षा कौन कर रहे हैं? पैरामिलिट्री फोर्स भारत सरकार के। यदि चोरी होती है तो सबसे पहले कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? सवाल ये है कि आपके अधिकारी अरेस्ट हो गए ना, केंद्र के अधिकारी तो अरेस्ट नहीं हुए। हाँ, तो यही तो उसका मेलिफाइड इंटरेस्ट है, सरकार को बदनाम करना है। आप कह रहे हैं ईडी केवल स्टेट ऑफिशियल्स को घेर रही है। मतलब ये एक चीज बताइए, जब वहां से कोयला चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं तो जो भारत सरकार के अधिकारी हैं, कोल डिपार्टमेंट के अधिकारी, एक जने चपरासी तक से पूछताछ की क्या? और सुरक्षा अधिकारी बैठे हैं वहां, आईजी से लेके कांस्टेबल तक के, किसी कांस्टेबल से पूछताछ की है क्या? नहीं पूछताछ किए। इसका मतलब लेकिन आपके अधिकारियों को बेल भी नहीं मिला ना। ईडी में एक बार गिरफ्तार कर लीजिए, फिर किसको बेल मिलता होता है मुझे? क्या ये आपको घेरने की कोशिश है कि भूपेश बाघेल के नजदीक आ जाओ, करप्शन का एलिगेशन लगा दो और आपको घेरने की कोशिश है? इस बात और कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तैयार है कार्रवाई के लिए पूरी तरह से? ये कर ही रहे, कौन रोक रहा है इसको? मैं देख रहा था बीजेपी का आरोप पत्र। गोबर घोटाला, रेत घोटाला, जैसे मैंने कहा शराब, कोयला, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला। उनका कहना है जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन में एम्प्लॉयमेंट होती है उसको लेकर घोटाला। तो एक इमेज बना दी है कि भूपेश बाघेल की सरकार, अमित शाह के वर्ड्स है, दिल्ली के लिए एटीएम, कि यहां से पैसा दिल्ली में आपके हाई कमांड में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, खरगे, उनके तक पहुंचता है। उसके लिए भूपेश बाघेल उनको पैसा देते हैं। अच्छा, मतलब भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व बैंक आरोप लगा रहे कि हम लोग एटीएम है कांग्रेस का। वो तो रिजर्व बैंक है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आप एटीएम है तो वो रिजर्व बैंक बन गए। वो रिजर्व बैंक है तभी कह रहे हैं एटीएम है करके। एक और सवाल उठता है कि अब एक तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस यानी भूपेश बाघेल ना, ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों की कोई सुनता नहीं, केवल बाघेल जी की सुनता है। वन मैन शो है। ये गलत बात। वन मैन शो है कि नहीं? बिल्कुल गलत। ताकत आपके पास है, पूरी ताकत, सत्ता। कोई फाइल आती है वो आपके ऑफिस पहले आ जाती है, किसी मंत्री के पास जाती भी नहीं है। नहीं, देश के अन्य राज्यों से कोई इतर व्यवस्था है क्या छत्तीसगढ़ में जिसमें इस प्रकार की बात करना है? देश के दूसरे राज्यों में जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, जो जिनको मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जो अधिकार है, उनके अलग अधिकार तो नहीं है। खाना तो आप बड़े अच्छी तरह से हमें खिला रहे हैं। ये क्या कहा इसको आपने? चीला। ये चीला और ये साबूदाना वड़ा, टू गुड। पर ये क्या है, सीक्रेट क्या है आपकी? कोई तो है फॉर्मूला? ये है कि पार्टी को आपने 10 साल में एक तरह से खड़ा कर लिया। ओपन सीक्रेट है टमाटर चटनी ने। और ओपन सीक्रेट ये है कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अच्छा, परिश्रम है या ओबीसी फैक्टर भी है कि आप ओबीसी नेता हैं? कुछ भी हो, अब कास्ट सेंसस से अब कांग्रेस में ओबीसी का जमाना आ गया। आप चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, अपर क्लास हो, कोई भी हो, आप किसी सेक्टर में चले जाइए। यदि राजदीप सरदेसाई यदि यहाँ पहुंचा है तो उसके पीछे उसका मेहनत है। वो किस कास्ट से इससे महत्व नहीं है, लेकिन आप इस क्षेत्र में आप यदि स्थापित हैं
तो उसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी लगन है। आप कास्ट सेंसस करवाएंगे? आपकी बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? करवाएंगे। अगर आपकी सरकार बनेगी आप करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। जो राहुल गांधी ने कहा है जितनी आबादी उतना हक आप करवाएंगे? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आप हिंदू समाज को डिवाइड करेंगे ये सब चीजें करके। डरा हुआ है नरेंद्र मोदी, डरा हुआ है भूपेश बाघेल से। उससे डरपोक तो दूसरा है भी नहीं। सर आपने आज तो अमित शाह को रिजर्व बैंक कर दिया। हाँ। फिर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी डरपोक है। डरपोक है। ईडी आपके घर पहुंच जाएगी। पहुंचने दीजिए, स्वागत है उनका। ईडी अगर आपके घर पहुंच जाए तो स्वागत है। स्वागत है। मनी ट्रेन लेके आ जाएगी। तो खुद पैसे लेकर आएगी क्या? 15 साल में कुछ। हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों साथ रहेंगे। ये चावल की मिठाई है। अच्छा, ये ओडिशा चावल से और गुड़। नहीं, ये छत्तीसगढ़ का है। चावल और चावल और गुड़। वेरी नाइस। सर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ये सब कर। नहीं बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? Very nice. We're going to finish breakfast with the chief minister, and then we're going to see him in a rally, because that is where we will see the real Bhupesh Baghel. एक बार ये नेता होते हैं ना, रैली में जाते हैं तब असली नेता दिखता है ना? हाँ, आपका अनुभव ज्यादा है। नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं, नेता जो असली होता है वो जनता के बीच जब जाता है तो उसकी नेतागिरी दिखती है। और because we are talking of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel ji is going to show us one of the traditional art forms of Chhattisgarh. That's before we go to the rally. आप लट्टू खेलते हैं? मैंने सुना है। So we'll play lattu with the chief minister. What is lattu? You'll find out. For now, enjoy the breakfast. This is the uniqueness of Indian chief ministers. कभी जीते हैं, मेडल जीते हैं कि नहीं? लट्टू तो हम खेलते तो जीतते थे। हाँ, जीतते थे। यू आर अ विनर देयर ऑल्सो। हाँ। यानी केवल राजनीति नहीं, लट्टू। यानी राजनीति में भी कभी लट्टू करना पड़ता है अपने राइवल्स को। हाँ। उनको घुमाना पड़ता है। द चीफ मिनिस्टर नोज हाउ टू प्ले लट्टू बोथ इन रियल लाइफ एंड इन पॉलिटिक्स। वी आर गोइंग टू हिट द कैंपेन ट्रेल with the chief minister who's a lattu master. Let's go. Wow, superb. अब देखते हैं कि कैंपेन ट्रेल पे आप क्या जादू करते हैं वोटर के साथ। मोदी फैक्टर 2018 में आप बड़ी जीत यहां हासिल करते हैं, 3/4। जैसे लोकसभा आती है मोदी जी की लहर होती है और वो जीत जाते हैं। क्या मोदी फैक्टर है कि नहीं छत्तीसगढ़ में? जहां तक के मोदी की बात करें तो मोदी जी ने अपने कार्यों की बदौलत कभी वोट नहीं मांगा, और इसके कारण से 2019 में बात करें तो वो पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक इन सब में वोट मांगा और इस कारण से जीत हासिल हुई। अब नहीं चलेगा। आप कितने दिन तक आप लोगों को भुलावे में रखेंगे? क्योंकि बीजेपी कहती है मोदी के सामने और कोई टिक नहीं सकता, ना राहुल गांधी ना भूपेश बाघेल। माइनस मोदी भी भारतीय जनता पार्टी 0 है। माइनस मोदी भारतीय जनता पार्टी 0। रमन सिंह, आप रमन सिंह सुन रहे हैं? ये सुनने दीजिए ना। 15 साल मुख्यमंत्री को आप 0 कह रहे हैं। उसको चेहरा भी नहीं बना है। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा कौन है? बिल्कुल सही बात है, कौन है? कांग्रेस का तो चेहरा भूपेश बाघेल है। तो उसका चेहरा बताए ना कौन है। चलिए देखते हैं कि चेहरा किस तरह से रैली में चलते हैं। आप अपने स्थान तय कीजिए, सम्मान होगा। भाई आपने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, वो भी बीच बीच में छत्तीसगढ़ी में। ये पूरा छत्तीसगढ़ी में भाषण है। हाँ, तो आप पे है वो ब्रेकफास्ट अच्छा खाए इसलिए। थैंक यू। प्रधानमंत्री जब कहते हैं रेवड़ी कल्चर है तो क्या कहेंगे उसको? प्रधानमंत्री कहते हैं आप तो प्रॉमिस कर रहे हैं रेवड़ी है ये। जो अडानी को देते हैं वो रबड़ी है, और हम लोग किसानों के यदि ऋण माफी करते हैं वो रेवड़ी है। सर अडानी तो यहाँ भी है, 9 कोयले खाने हैं उनकी एरिया एक्सपैंड हो रही है। अडानी की कंपनी छत्तीसगढ़ में है। कंपनी है, लेकिन लोहा खदान दिया था, निरस्त हो गया।
उसको निरस्त कर। नगरनार हम जाने तो नहीं देंगे। बाघेल सरकार और अडानी के बीच में कोई समझौता नहीं है। ये अडानी और खदान के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी है। चलिए, भूपेश बाघेल जी, आपने हमसे बात की, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। अब आपका नेता कौन है? अब ये 5 साल पहले तो ये सवाल था। हमारा नेता देखिए कांग्रेस पार्टी कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो बाघेल जी ही बनेंगे या टीएस सिंहदेव भी बन सकते हैं? से वो होगा। अभी हमारा मुद्दा है चुनाव जीतना है, कांग्रेस की सरकार ला रहा है। हाईकमांड कौन है? खड़गे जी है या राहुल प्रियंका जी है या कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हाईकमान है, खड़गे जी हमारे हाईकमान है। अमित शाह भी कह रहे हैं अब की बार 75 पिछले बार उन्होंने अब की बार 65, पिछली बार कह के गए थे 15 मिला उनको, 75 पार बोल के गए थे अमित शाह। जो ईडी और सीबीआई से छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अमित शाह हम लोगों को क्या बताएंगे कितनी सीट आएगी? छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल से तय किया हुआ है कि अब की बार 75 पार। भारतीय जनता के पार्टी के पास ना चेहरा है, ना यहाँ पर उनके पास कोई मुद्दा है। और आपके नहीं मिले आपको 75 तो निश्चित तौर देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर जो काम हुआ है छत्तीसगढ़ मॉडल में, हमारे को 75 पार मिलेगा। डबल इंजन तो फेल करके दिखाया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पार्टी ने। मोदी फैक्टर है कि नहीं? मोदी जी आएंगे? मोदी जी के कामों को, मोदी जी के क्रियाकलापों को छत्तीसगढ़ की जनता एक बार ठुकरा चुकी है। आने वाले चुनाव में और परिणाम आएगा और बहुमत से ज्यादा सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। भाजपा आएगी, खुशहाली लाएगी। If the Congress appears to have put almost all its eggs in the Bhupesh Baghel basket here in Chhattisgarh, the BJP is talking of a collective leadership this time. Where does that leave its 3-time chief minister and the face of the party for many years, Dr. Raman Singh? Let's go and meet Dr. Saab to find out if this is his last battle in Chhattisgarh. नमस्कार सर। नमस्कार रमन सिंह जी, गुड टू सी यू। डॉक्टर साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद। ऑल सेट फॉर इलेक्शंस? बिल्कुल, तैयारियां चालू हो गई हैं और इलेक्शन के अभी नॉमिनेशन का फेज 1 पूरा कर चुके हैं। फेज 2 में अब हम लोग जा रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो गया, कैंपेन शुरू हो गया, लेकिन बीजेपी का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन? जब भी मैं किसी कांग्रेसी से पूछता हूं, वो कहते हैं लगभग तय है भूपेश बाघेल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे अगर कांग्रेस जीतती है। बीजेपी से पूछिए उनके मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? देखिए, ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी इस बार और पहले भी 2003 की बात मैं बताऊं, 8 में बताऊं या 13 में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में हम सब लगे रहे। मगर कहीं उस दौर में भी जब मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, कोई डॉक्टर रमन के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। उस समय भी सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, इस बार भी हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सवाल कांग्रेस का है जी। कांग्रेस ने पहले नारे उनके बदल गए, आप देखेंगे। भूपेश है तो भरोसा है जी, ऐसा लगने लगा कि भूपेश के ऊपर ही पूरा चुनाव अभियान चलेगा और ये मुख्यमंत्री का दावेदार है। मगर 1 महीने के अंदर ही भरोसे की सरकार हो गई। सामूहिक नेतृत्व की बात कांग्रेस ने भी कर दिया और कांग्रेस भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा। आज कांग्रेस में भी भूपेश बघेल कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। लोग कार्यकर्ता बोल दें, कार्यकर्ता तो किसी का भी नाम लेके बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या रमन सिंह, चर्चा थी 2-3 महीने पहले कि रमन सिंह जी को क्या कहा जा रहा है कि अब आप बहुत हो चुका, एक नया नेतृत्व लाते, न्यू जनरेशन। ये भी अटकलें थी कि आपको गवर्नरशिप ऑफर कर दी गई है। अब सुनने में आ रहा है कि आप अपने सब कैंडिडेट्स को लगा रहे हैं, पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं ना आप? देखिए, मुख्यमंत्री का निर्णय आज तो अभी होगा नहीं। मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव के रिजल्ट, जब विधायक दल की बैठक होती, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्लियर प्रक्रिया है, हर बार वही होता है। चुनाव हो जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है और पहले विधायक दल की बैठक में ही हम आधे घंटे में निर्णय ले लेते हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए आज ये कहें कि डॉक्टर रमन का चेहरा है या अन्य कोई चेहरा है,
तो ये भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं है। नहीं, क्योंकि एक हाई कमांड कल्चर अब बीजेपी में भी आ गया है, कहा जा रहा है। जो कांग्रेस का हाई कमांड कल्चर था अब बीजेपी में आ गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी सब कुछ डिसाइड करते हैं और हर चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जाता है। ना रमन सिंह के नाम पर, ना सामूहिक नेतृत्व, केवल मोदी जी को देखकर चुनाव लड़ा जाता है। सही है बीजेपी में? देखिए, मोदी जी का नाम और काम दोनों बड़ा है और निश्चित रूप से मोदी जी के नाम को लेकर, उनके किए गए काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान में जाती है। हम लोग छत्तीसगढ़ में जब अपनी बात करते हैं उसके साथ जोड़ते हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट के काम किए और उसकी तुलना भूपेश के 5 साल के कार्यकाल से करते हैं। तो ये तो तुलना सभी जगह किया जाता है। आपने कहा है कि ये घोटालों की सरकार है। कई आपने कहा है, कई आरोप पत्र में कई आपने आरोप लगाए भूपेश बघेल की सरकार में। वो कहते हैं, रमन सिंह जी से पूछिए, 26,000 करोड़ का जब पीडीएस घोटाला हुआ था तब की बात करिए, अब की बात मत करिए। एक भी प्रमाण, भूपेश को मुख्यमंत्री बने कितने साल हो गए? 5 साल। सारी ऑफिस, सारे दफ्तर, सारे डिपार्टमेंट, सारे एसीबी, सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सारा चीफ सेक्रेटरी से लेकर सारे अधिकारी, 5 साल में 5 साल निकल गया। डॉक्टर रमन के खिलाफ एक पैसे का भी आरोप किसी जगह पे प्रमाणित करने की ताकत इनके अंदर नहीं है, क्योंकि हमने कभी कुछ किया नहीं है, कभी एक पैसे का करप्शन की बात। आज डॉक्टर रमन माइंस का मिनिस्टर था, माइंस डिपार्टमेंट में देखता था, इलेक्ट्रिसिटी में देखता था, 15 साल देखा। आज ये 5 साल माइनिंग डिपार्टमेंट देखे हैं। एक एग्जांपल दूंगा तो करप्शन की बात आपको साफ हो जाएगा और आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कोयले को लेकर हमने स्पष्ट कहा था कि कोयले की निकासी के लिए जो डिस्पैच ऑर्डर होता है, डीओ जो निकलता है, मैंने आदेश किया था अपने सरकार में रहते कि इसको हम डायरेक्ट जितने डिस्पैच ऑर्डर निकलते हैं ऑनलाइन किया जाए। ऑनलाइन करने से किसी को मैनुअल वहां जाकर एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोयला निकल जाता है। पहले दिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते हैं, ऑनलाइन को ऑफलाइन किया। आज उनका डायरेक्टर 7 महीने से जेल में सड़ रहा है। ऑफलाइन में 25 रुपया पर टन, 525 करोड़ रुपया की वसूली, ये प्रमाणित दस्तावेज ईडी ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है। 7 महीने से कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है आईएएस का डायरेक्टर लेवल का अधिकारी को, जो भूपेश के विभाग का डायरेक्टर है माइंस। क्योंकि उनका कहना है ईडी का गैर इस्तेमाल हो रहा है। वो कह रहे हैं ईडी का गैर इस्तेमाल, अमित शाह और रमन सिंह जी ने ईडी का गैर इस्तेमाल करके हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं। मैं तो प्रमाण ये 13,000 पेज के दस्तावेज ईडी जब जमा करता है, न्यायालय में प्रस्तुत करता है, इनके अधिकारियों को जमानत नहीं मिलती, इनके पास 150 करोड़ की अघोषित संपत्ति जब्त होती है, सारे प्रकरण, सारे मामले। आज तो छत्तीसगढ़ का बच्चा कोरबा में खड़े होकर पूछ लो कि कोयले में कितनी वसूली होती है, तो होटल पानठेला का आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी बोलेगा 25 रुपये प्रति टन वहां जाके जमा करना। जब कलेक्टर कलेक्टिंग एजेंट बन जाए जिस सरकार में, कलेक्टर के पोस्टिंग में जहां ऑक्शन होता हो, 8 करोड़ 10 करोड़ लेके पोस्टिंग होती हो, उस सरकार की नीयत और नीति की क्या बात करें। मैं उनका भाषण सुन रहा था, उन्होंने अडानी जी का भी जिक्र किया। कहा कि रमन सिंह जी की सरकार जो थी वो पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी को ला रही थी, सब माइनिंग वगैरह सब प्राइवेट कंपनी को देना चाहती थी, अडानी के साथ डील हो गई थी उनकी। अरे हमने तो छत्तीसगढ़ के स्टील कोल के लिए, स्टील और आयरन ओर के लिए छत्तीसगढ़ की जितनी इंडस्ट्री है, मैं आज दावे से कहता हूँ मुझसे ज्यादा कोई कोल ब्लॉक कॉम्पटन में रिकमेंडेशन नहीं किया होगा, मेरे से ज्यादा कोई आयरन ओर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। हमने नीति बना दी बस। कोई 100 साल डील नहीं की, कोई 100 साल आरोप इसलिए नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, उसका कारण बता रहा। हमने कहा जो वैल्यू एडिशन करेगा छत्तीसगढ़ में, उसके साथ हम एमओयू करेंगे, और उनको हमने कोयला भी दिया, हमने उसको लोहा भी दिया। 70 कंपनियां, कोई एक आज तक 1 रुपये का कोई विषय, इतने लोग कोल के स्कैन में 5 साल में कहां चले गए। डॉक्टर रमन ने कहा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और आज नहीं, भूपेश को तो 5 साल हो गए भाई साहब, 5 साल से सरकार में है, एक एक फाइल को पलटा के देख चुका है, माइक्रोस्कोप लगा के देख चुका है, सारे अधिकारियों का टैलेंट देख चुका है। वो क्या किया 5 साल के अंदर, क्या निकला। जिस तरह से आप
आज बात कर रहे हैं, होश बड़े जोश से बात कर रहे हैं। ये आखिरी लड़ाई, लास्ट इलेक्शन, जीते या हारे लास्ट इलेक्शन। ये बात मैं कह सकता हूं कि शायद इसके बाद मैं चुनाव की राजनीति में आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे नहीं मालूम, मगर ये महत्वपूर्ण चुनाव है मेरे जीवन का। आई जस्ट वांट टू टेल यू, रमन सिंह जी हैज अ स्वीट टूथ, उनको मिठाई पसंद है। रमन सिंह जी, इसलिए आपने मुझे मिल्क केक और ये गुजिया दी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर होके मुझे खिला रहे हैं ऐसी चीजें जो मेरा टेस्ट के लिए आप भी लीजिए, आप लीजिए थोड़ा सा, आपका स्वीट टूथ है। रमन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। द ग्रैंड यंग मैन ऑफ छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स, सही है ना? ग्रैंड यंग, दिल से तो यंग ऑलवेज, दिल से तो यंग। Now, one of the challenges for most states, especially post-COVID, is how do you provide jobs for the young? The Congress government earlier this year gave a 2,500 rupees unemployment allowance, and the BJP is promising to bring in IT parks. But how do the young see their politics? Let's find out with some young political activists and residents of Raipur. Namaskar. How are you all? Gen Next कैसे हो? सब ठीक? यार कोई थोड़ा तो एनर्जी होनी चाहिए। अच्छा, ये आप में से कांग्रेस के कौन है? इस तरफ है। ओके, दीज आर कांग्रेस एक्टिविस्ट। बीजेपी के कहाँ है? वेरी गुड। आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो हियर इन छत्तीसगढ़। एंड आप क्या है? योर फर्स्ट टाइम वोटर्स, गुड टू सी ऑल। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ यू ऑल फर्स्ट टाइम वोटर्स। Are you excited about an election or being about jobs? Yes sir, I am excited, but यहाँ पे job opportunities बहुत ज़्यादा नहीं है। BPO सेक्टर कम है, हम लोग को ज़्यादा वो नहीं मिल रहा है कि हाँ। नो सर्विस सेक्टर नहीं है, IT पार्क्स कुछ नहीं है। नहीं, इतना कुछ नहीं है। हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ जाता कि अच्छा कहीं कंपनी मिल जाए तो अपन जॉब थोड़ा कर सके। आप MBA करना चाहती है? हाँ, तो यहाँ करेंगी, कहाँ करेंगी? पुणे से करूंगी। यहाँ क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि यहाँ अच्छे कॉलेजेस नहीं है जिसकी फर्दर स्टडीज में सोच सकूँ। यहाँ कॉलेजेस उस तरह के नहीं है। मैम, आप क्या करना चाहती है? मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। गवर्नमेंट, तो you'll do the Public Service Commission exam? Yes sir. PSC exam. Now I want to tell everybody the PSC exam is a big political issue. Public Service Commission. Opposition says that the Congress government fixed the PSC jobs. The chairman's son got a job. Congress leaders' children got jobs. सही है ना? हाँ यार, जहाँ मैं जाता हूँ या तो पेपर लीक का प्रॉब्लम होता है या ये पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है। ये बीजेपी कह रही है कि ये पूरा सिस्टम आप लोगों ने रिग किया है अपने लोगों को रिक्रूटमेंट करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो PSC एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसपे चयन तो राज्य सरकार करती है, पर डिसिप्लिनरी एक्शन जो होती है वो केंद्र सरकार ले सकती है। तो केंद्र सरकार अपना पल्ला ना झाड़े और बात छात्रों की है तो छात्रों के साथ खड़े होकर के डिसिप्लिनरी एक्शन ले। आप मानते हैं कि ये PSC एग्जाम रिग हुई या नहीं हुई? नहीं, देखिए, नहीं हुई है PSC में, इसमें कोई, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। और अरे सब कांग्रेस नेताओं के बच्चों को इसमें सीट्स मिल गए। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी PSC में घोटाला नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। निराधार है, इनका जो वक्तव्य है निराधार है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है और कहा कि कोई संयोग नहीं हो सकता 18 लोगों की नियुक्ति केवल कांग्रेसी नेताओं की हो। कोर्ट ने कहा है कि संयोग नहीं हो सकता, तो कैसे गलत नहीं है? रोक क्यों लगाई, मैं पूछना चाहता हूँ। सपनों का छत्तीसगढ़, अगर आप चाहते हैं कि एक नया छत्तीसगढ़ बने, आप वैसे तो हम सब भारतवासी हैं, सब इंडियन है, इंडियन हो भारतीय हो, लेकिन है इस देश के। अगर आपके पास एक सपना हो छत्तीसगढ़ के लिए, यंग होने के, क्या चाहते हैं? एक चीज अगर आप कहेंगे भूपेश बाघेल जी से या रमन सिंह जी से या आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से, क्या करना चाहते हैं? एक ही चीज सर, देखिए, बल्कि मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि किसी भी जगह का विकास तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो बीजेपी ने किया वो आधारशील नहीं है ये कहने के लिए कि कोई इंडिविजुअल यहाँ पर खुश है। यहाँ पर इंडिविजुअल डेवलपमेंट मुझे व्हाट इज योर वन ड्रीम छत्तीसगढ़ के लिए? This state needs more social justice and not infrastructure. This state needs social justice. And that is ensured by a party and which should be further moved ahead with Kisan, with women, with
youth, everybody. Okay, क्या है सपना? वर्तमान में छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अपराध मुक्त हो। मैं बताता हूँ, एडिशनल आईएसपी के कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। ये तो राज्य में अपराध की स्थिति होती है। Let me ask you, do you feel safe in? You don't feel safe? आप 7 बजे के बाद पिक्चर देखने जा सकती है कि नहीं अकेले? अपन वॉक भी नहीं कर सकते। Yes or no? एक मिनट। नो वॉक भी नहीं कर सकते एक्चुअली एकदम। मैडम, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट छत्तीसगढ़? अच्छी चीज है कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ डर के रहेंगे तो डरेंगे ही, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके सुकून है। सुकून है। सुकून है। छत्तीसगढ़ में सुकून है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि 10-15 साल जब छत्तीसगढ़ का नाम निकलता था तो नक्सलवाद का नाम होता था, राइट? भूपेश बघेल ने खुद बोला है कि मैं नक्सली क्षेत्र से आता हूं। भूपेश बघेल ने ये बात कही है, मुख्यमंत्री जी। पर आप मानते हैं कम से कम रायपुर में आप मानते हैं कि आज एक सुकून का माहौल है कि नहीं? NCRB says there has been 80% reduction in Naxal cases and 56% reduction in killings. Of course, but remember your entire Congress leadership also was killed in 2013. Family members was also there in that Naxal attack. Sorry? Forces as well. Sorry? क्या That बताया? achievement of Naxal attacks declination also belongs to central government and defense forces. Fair enough. मेरा एक आखिरी सवाल है। मेरे प्रोग्राम का नाम है इलेक्शंस ऑन माय प्लेट, यानी उस प्रोग्राम में पॉलिटिक्स के साथ कुछ खाना भी होता है। मैंने चीला ब्रेकफास्ट के लिए खा लिया है, अब मैं खाऊंगा गोलगप्पे। हाँ? और क्या? फरा राइस की डिश होती है। फरा। यस, फरा। चलिए, कहते हैं उसको गुपचुप। आप गोलगप्पे को गुपचुप कहते हैं। आप खिलाओगे, मैं खिलाऊं आपको? चलिए। खट्टा बनाते हो? खट्टा गुपचुप बना दे। कितने देते हो? 1 10 रुपए में 4 गुपचुप। बहुत अच्छा। रायपुर के मरीन ड्राइव का गुपचुप। स्माइल करो मेरे दोस्त। गुपचुप क्यों कहा आपने इसको? गुप से खाओ और चुप हो जाओ। गुप से खाओ और चुप हो जाओ। जय गुपचुप। खा ले वो गुपचुप मजेदार। चलो खा ले वो गुपचुप मजेदार। From here, गुपचुप होके we are heading to the countryside because this is Chhattisgarh and elections are not going to be decided here in Raipur but in the countryside. You're watching Elections on My Plate. Now, the battle for Chhattisgarh is often won or lost in the tribal heartland, which is why we've traveled more than 200 kilometers out of Raipur to here in Kanker, in Bastar division, amidst the wondrous forests of this state. In 2018, the Congress had swept the tribal belt, winning 25 of the 29 seats here. But remember, the tribal vote is a complex one, and there is no visible wave according to most observers, so the contest could be tighter. What's the general mood and the key issues that are playing out in Bastar this time in 2023? That's what we want to find out. But before that, since we are in Bastar, there is something that you have to have when you're on the highway and ready for lunch. It's time for Kadaknath chicken. Chalo, Tiger! Kadaknath chicken. Oh, black murga. Kadaknath. Kala murga. कहाँ जा रहा है काला मुर्गा? इतने जल्दी you can't get away. नहीं, बिल्कुल नेता की तरह है, तेजी से निकल रहा है पब्लिक से। आ जाओ टाइगर, कड़कनाथ, वेरी गुड।
Ah, that's what I wanted, my black chicken, Kadaknath. There is my chicken Kadaknath. Now, you cannot come to this part of Bastar and not try this. Remember the black murga? It's chicken now. It is excellent chicken curry with a sort of blackish pepper being put in. And it's just what I need because we've got a long way to go. Journeys are very long in Bastar and we're going to meet the farmers and the tribals. Their concerns are top of the mind in this Chhattisgarh election. But first, Kadaknath. Now, the paddy cultivating farmers of Chhattisgarh remain the state's biggest vote bank. In 2018, Bhupesh Baghel won them over by promising them a loan waiver and a higher minimum support price. 5 years later, he's promising another loan waiver, even as the BJP points out to a reformed public distribution system when they were in power and the Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, under which farmers get cash in hand. So what really are the issues facing the farmers of Chhattisgarh? We've come to this village in Kanker where paddy harvesting is about to take place to find out. Come with me. अच्छा ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं और सबकी निगाहें किसानों पर है, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, किसने किसानों के लिए किया है ज्यादा? या आपको जो कर्ज माफी की बात हो रही है, न्यूनतम दाम देने की बात हो रही है, मिलता है कि नहीं या केवल वादे हो रहे हैं? पिछला बार 25 रुपए क्विंटल मिला था। पिछला सीजन में पिछले सीजन मिला था 2500 क्विंटल मिला था आपको। इस बार क्या उम्मीद है? अब इस बार का तो अलग अलग वादे कर रहे हैं दोनों पार्टियां, कौन ज्यादा दे दे। कर्ज माफी की भी बात हो रही है, कर्ज माफी से कोई फायदा होगा? आप खुश होंगे अगर कर्ज माफी हो? कर्ज माफी से क्या फायदा होगा? कर्ज माफी से बड़े जो किसान हैं वो जो 2 लाख 3 लाख रुपए लिया है उसको किस फायदा होगा, और छोटे किसान जो 10 लाख 5 लाख रुपए उसको क्या फायदा होगा? तो आपको क्या चाहिए? अगर आप सरकार से एक मांग करते तो क्या मांग करते? दाम सही मिलना चाहिए। दाम सही मिलना चाहिए। दाम सही मिलना चाहिए। कर्जा माफी उचित नहीं है। हाँ, तो आपको कर्जा माफी की जरूरत नहीं है? नहीं है, दाम सही मिलना चाहिए। आपको दाम चाहिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी आपको कुछ दे रही है और केंद्र सरकार भी दे रही है। हाँ, तो कौन बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बिजली का कितना बिल आता है आपका? अपना अभी घर का 290 रुपए आया है। 290 रुपए बिजली का बिल आया है। और जब रमन सिंह थे तब उस समय वो एक फ्लैट रेट के हिसाब से चलता था ना, तो 100 रुपए आता था एक घर का। सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है आज? आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपके बच्चे क्या करते हैं? वो भी खेती करेंगे? जी नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। आप चाहते हैं कि वो खेती करें या नहीं? नहीं, वो सर्विस करेंगे। हाँ, नहीं, आप नहीं चाहते कि वो खेती करे? क्यों भाई? सबके बच्चे किसानी कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों ना कम से कम नौकरी भी करे कुछ तो चुनाव कौन जीतेगा? कौन? अब यहाँ पर दोनों का लहर है, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों का लहर है? दोनों का लहर है। कौन जीतेगा? अब दोनों का तो लहर है। अब किसान लोग तो कर्जा माफी के चक्कर में कैसे करेंगे? तो कर्जा माफी के नाम पे वोट हो सकता है, कुछ लोग तो देंगे। पिछले बार भी वही हुआ था। पिछले बार भी वही हुआ था। कांग्रेस ने कह दिया कि कर्ज माफी वही होता है, लालच में आ जाते हैं किसान, लालच में करके और दे देते हैं उसको वोट, फिर बाद में होता क्या है वही तो। गैस की रेट बढ़ी है या वैसे ही है? बढ़ गया है। तो एक से सिलेंडर का कितना खर्च करना पड़ता है? 1200 है। 1250 आपको खर्च करना पड़ता है एक सिलेंडर का। तो वो पहले कितना था? पहले 800-900 था। 900 रुपए था, उसके बाद फिर बढ़ा, अभी बढ़ गया, फिर अभी थोड़ा सा दाम कम हुआ है। 1100 रुपए हुआ है। इधर दे रहे हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। द बिग टेक अवे फॉर मी इज दैट loan waivers may be seen as a way to win elections, but what the farmers really want is a reduction in input costs.
and a reduction in prices that can increase their savings. That's the real challenge. Thank you. Namaskar. Namaskar. Our travels into Kaker's forests have brought us here in this Bastar division area to a village where traditionally the narrative used to be about underdevelopment, about poverty, about Naxalism. This time, there is a new narrative playing out of a conflict between Christian and non-Christian tribals over the basic issue of denying burial rights to those who have converted to Christianity. Come with me. नमस्कार। मैंने सुना है कि आपके पति को आपने दफनाया था और गांव वालों ने दफनाने से मना किया और आपको निकालने के लिए बोला निकालने के लिए, शव निकालने के लिए। क्यों, क्या बोले वो? यहाँ होना नहीं करके बोले। यहाँ होना नहीं है जी, अपने पट्टा के जमीन में दफनाई थी, फिर भी वो निकालने के लिए बोली। तो आपने अपने पति को अपने पट्टे की जमीन में दफनाया था, फिर भी आपको निकालना पड़ा। ये कब हुआ? 10 अगस्त को। जी। और गांव वाले सब आ गए यहाँ। ये क्या एक ये हो गया है क्या कि क्योंकि आपने धर्मांतरण किया है, आप क्रिश्चियन बन गई हैं, इसलिए उन्होंने कहा? क्या कारण दिया? आप क्रिश्चियन बन गई है ना, धर्मांतरण किया है आप लोगों ने जी, तो इसलिए बोला नहीं कर सकते। तो कहाँ फिर शव कहाँ दफनाया? काकेर में जाना पड़ा जी। तो आपको यहाँ अपने गांव में दफनाने की इजाजत नहीं दी गई। कौन है ये लोग? ये सर गांव के गायता और पटेल है सर। गायता और पटेल, उनके साथ में और भी 4-5 थे। हाँ। तो उन लोग बोले कि अपने गांव में मतलब नहीं, बिल्कुल दफनाने नहीं देंगे। अपने गांव में जितना भी अपने जो गायता का शिवार रहता है, हाँ। उस बीच में हम जितना भी मसीह के जो व्यक्ति हैं, जो धर्मांतरण किए हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों को कभी भी हम दफनाने नहीं देंगे। तो ये सरपंच ने कहा? गायता पटेल और उप सरपंच भी था। कितने साल पहले आपने धर्मांतरण किया था? हम तो 20-25 साल हो गया। 20-25 साल हो गए जी। तो गांव में कई लोगों ने धर्मांतरण किया है क्या? इस गांव में 17 परिवार हैं। 17 परिवार है जिन्होंने धर्मांतरण किया है। क्या वजह थी आपने धर्मांतरण किया? सर, हम लोग काफी बीमार थे, परेशान थे, इस वजह से हम लोग ये मसीह को माने, तो उसके पीछे चले तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम उसका फॉलो कर रहे हैं और उसके पीछे हम लोग चल रहे हैं। किसी ने जोर जबरदस्ती से आपको नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी? नहीं, हम खुद जाए हैं। आप खुद जाए हैं अपने आप में, किसी ने आपको ये नहीं कहा। लेकिन आदिवासी परिवार बढ़ गए हैं, कुछ लोग जो धर्मांतरण किए हैं और जिन्होंने नहीं किया, इसमें आपका गांव बढ़ गया है क्या? सर, इसमें अभी भी हम लोग ये धर्मांतरण तो नहीं किया है, मतलब कोई मतलब कागज कार्रवाई से मतलब किसी का प्रलोभन या ऐसे लालच हमको किसी ने नहीं दिया है। हम स्वयं इच्छा से गए, क्योंकि हमको संविधान मालूम है कि यह भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमको कोई भी धर्म को मानने का ऐसा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम उसके पीछे चल रहे हैं। किसको वोट दोगे? सर्ववादी दल को देंगे सर। सर्ववादी दल को दोगे? ये जो नई पार्टी बनी है? यस सर। क्रिश्चियन पार्टी। तो आप लोग क्रिश्चियन ट्राइबल जो है क्रिश्चियन पार्टी को वोट देना चाहते हो? जी सर, क्योंकि हमारी आवाज को कोई नहीं सुनते, नेता लोग भी जिसके पास भी जाए हमारी बातों को दबा दिया जाता है। कांग्रेस हो या बीजेपी? यस सर, हमारे पास पहले से हम लोग, मेरे माता पिता पहले से कांग्रेस को दिया करते थे वोट, अब हम नहीं देंगे उनको। उनके पास भी जाने से हमारी बातों को नहीं सुनते हम लोग। बीजेपी कह रही है कि वो सनातन धर्म के नाम पर आप सबको इकट्ठा करना चाहती है।
आपको बीजेपी में विश्वास नहीं है जब सनातन धर्म की बात करती है, हिंदुइज्म की बात करती है? सर यदि ऐसा होता तो आज हमारे ये मसीह भाइयों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता। आप जानते हैं कि बीजेपी के जो जिला पंचायत सदस्य था या जो नारायणपुर में, वो खुद ही ये मसीहों के प्रति या वहाँ के मसीहों के घरों को, उनके लोगों को ये मारा पीटी या तोड़फोड़ करने लगे और वहाँ का एसपी के सर में भी चोट लाया। तो इसलिए हमारा विश्वास टूट गया कांग्रेस और बीजेपी के प्रति। पर वो जीत पाएगी? इतने बड़े ताकतवर है, उनके पास बहुत पैसा है, बीजेपी कांग्रेस के पास पैसा है, फिर भी सर हम लोग नए पार्टी को देंगे। अभी पैसा है फिर भी नए पार्टी को देंगे? हाँ, जी सर, हम लोग क्योंकि हम विश्वास है कोई ना कोई छोटे मोटा पद में रहेंगे अपना, तो हमारी आवाज को आगे बढ़ा सके। You've heard these voices demanding the basic right to bury the dead. We are in a village, remember, which is more than 200 kilometers away from Raipur. Is someone in the state capital, whoever comes to power, listening to these voices, voices of Indians, whether they are converted tribals, doesn't take away from the fact that they have the same constitutional rights as every Indian citizen. Okay, our final stop on elections on my plate here in Chhattisgarh has brought us back to Raipur for dinner because our Raipur correspondent Sumi insists that there is a place here which is unique and like no other possibly in the country. What's so special about Nukkad? Let's find out. Come with me. Gauri ji, how are you? कैसे हो? बहुत बढ़िया। I like your red shoes. थैंक यू सो मच सर। पर ये बताइए, ये यूनिक क्या है नुक्कड़ के बारे में आपके रेड शूज के अलावा? नुक्कड़ सन 2013 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे डेफ कमेटी हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया और मूक बधिर लोग काम करते हैं सर। तो आप यहाँ जितने लोग काम करते हैं वो तो या तो डेफ है, या तो डॉर्फ है, या तो ड्वार्फ है, या ट्रांसजेंडर है। यस सर। This is a uniquely diverse, inclusive restaurant, I'm told, the kind which perhaps is not there anywhere else in the country. Well, let's find out. खाना ठीक है ना? बहुत बढ़िया सर, एक बार ट्राई कीजिए आप। चलो, come on, I am always ready to try. But that's what I want to experiment and see. This unique, inclusive place that brings together transgenders, dwarfs, and indeed the deaf. And those with even Down syndrome. Unique, truly. नमस्कार, क्या नाम है? मनीष कुमार खुट्टे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, कैसे हो सुनील? नमस्कार, नमस्कार, क्या नाम है इनका? दीनदयाल साहू। दीनदयाल साहू। तो दीनदयाल साहू, सुनील और मनीष। अरे वाह, आप तीनों मुझे सर्व करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये साइंस बताइए, ये सॉल्ट है, इसके लिए क्या करना है? ऐसे सॉल्ट, शुगर, मसाला, चाय, कॉफी, cold drink, and good sign language. I'm trying to master it. Thank you very much, boys. Welcome. Thank you. I'm ready for my Nukkad thali. Chhattisgarhi thali. Okay, as we end elections on my plate, this is my good news story on the plate. I'm being served in a truly inclusive, diverse manner here at Nukkad. And that makes it so special and rewarding. Who's going to get the good news though at election time? Will it be the ruling Congress or the opposition BJP? The Congress will believe, given the gap of 2018, that it is advantage to them. But things can change in Indian elections, and I'm not going to get into the numbers game. I'm going to now focus on the food. As they say in these parts, Jai Chhattisgarh Mehtari. From the entire team on elections on my plate, Vivek, Sumi, Amit, Alok and Raghvendra, thanks for watching. Enjoy. Maza kariye.